Hello everyone. I come with a new topics, but this time economics honors for part three. Honors. These topics, namely, is a banking system. Banking system. Banking system in India. Banking system in India. So I discuss very important topics. First of say I also say this topics is very long parts because in this lecture two topics included. One is banking and other is financial institution. So I discuss one by one. First of all, I discuss banking system, and next another days and another lecture discuss financial institution. I hope this topics completed in likely 2 to 3 lectures. So without waste of any times, I come with the topics. That means banking system. First of all, what is bank? What is bank? Bank क्या है? Bank implies that the financial institution which take deposit from the public and also extend credit to the needed public. इसमें कहने का मतलब यह है कि बैंकिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें पब्लिक के द्वारा जमा किए जाने वाले पैसे और साथ ही साथ अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसे वित्तीय सहायता में मीन्स जैसे जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में उसे हम बोलते हैं लोन, और इसे हम इकोनॉमिक्स टर्म या फिर स्टैंडर्ड टर्म में इसको बोलते हैं क्रेडिट दैट मीन्स एक्सटेंशन डिसबर्सिंग ऑफ लोन from institution to public on the marginal rate of interest or a standard rate of interest to the public or in the society. So banking system is this types of work who needed it. They are a substantial part of the financial system which assist in the overall economic development. These are broadly classified as scheduled and non-scheduled bank in India. Regulated under the Banking Regulation Act 1949, wherein a scheduled bank include all the commercial bank like nationalized, foreign development, cooperative and regional rural bank. According to this statement, this bank is a very big role in the economic development scenario. Economic development scenario. So also bank is categorized in two parts. One is scheduled bank and another is non-scheduled bank. So what is scheduled bank and what is non-scheduled bank, I all discuss in one by one in the lecture. But today I discuss a banking system. what structure, that means a structure of the Indian banking system कि कैसे होता है. तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने मैं एक डायग्राम लेकर आया हूँ पहले से कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर में हम दे सकूँ, लेक्चर में हम बता सकूँ. तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं RBI. ये RBI क्या है, जिसे आप जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया. दिस बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स ऑफ द बैंक, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द लेंडर. ये सब सारे चीज कोट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हिस्ट्री है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं. इज अ वेरी ओल्ड हिस्ट्रीज. That means in the period of British rule in India, establishment in this period. So this bank is founded
in 1 April 1935 under the Indian Act of 1934 बट तो यहाँ पर कहने का ये है कि इस बैंक का जो इंडिया का सबसे एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, उसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हम उसके बाद यहाँ पे ये देखते हैं कि अंडर द एक्ट ऑफ 1934 और उसके बाद इस बैंक का वहां पर नेशनलाइज नहीं किया गया था, तो दिस बैंक इज नेशनलाइज इन 1949 ईरा इसमें इसको नेशनलाइज किया गया। अब ये जो बैंक है सारे बैंक का बैंक का हेड्स है। तो इंडियन सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ बैंक, वन इज शेड्यूल्ड बैंक, अनदर इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। हम शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक को हम लेक्चर में हो सकता है, अगर इस लेक्चर में अगर मिल जाए टाइम तो हम बता सकते हैं, बट हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम कर लेते हैं। तो 2 भाग में हम इसे बांट देते हैं। दिस डिवाइडेड इंडियन बैंकिंग सिस्टम डिवाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द 2 पार्ट्स, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। But here the scheduled banks, non-scheduled banks contributing very small contribution in Indian banking system, but scheduled banks providing very big role and very big share in the Indian bank system or Indian financial market, financial institution. So this bank, scheduled bank is also divided into 2 parts. One is commercial bank and another is cooperative banks. What is commercial bank? Commercial means that banks means taking also the matching for definition of bank that I previously said about the banking definition of banks. That means banks are the institution which takes deposit and extend credit to the public who need it. तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन यहाँ पर भी आता है। बट हम यहाँ पर पार्ट्स बाय पार्ट देखते हैं क्या कि कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कॉमर्शियल बैंक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट मीन्स ये पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर जो कंट्रोल एंड ओन्ड बाई विथ लार्ज शेयर बाई पब्लिक, या दैट मीन्स गवर्नमेंट, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट मीन्स दिस बैंक इज ओन एंड रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट ओनर बट अंडर द norms and fulfilling rule and order provided by the RBI government and other banks norms, equally other banks norms. Next, फॉरेन बैंक में यानी कि विदेशों का जो बैंक होता है उस बैंक को भी इसमें हम कमर्शियल बैंक के शेड्यूल में हम कमर्शियल बैंक में हम इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट जो है रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम लोग RRB के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, RRB के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, फॉरेन बैंक्स क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं क्या कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होता है जो सरकार के द्वारा बड़े शेयर, उसमें बैंक में शेयर होता है। एक आप देखते होंगे कि जब जैसे अंडरटेकिंग तो भारत सरकार के उपक्रम ऐसे लिखा रहता है, तो दिस यूनिट इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, दैट मीन्स owned by honored with a share, that means 50%, 51%, 60%, this type of this share is included divided in the public sector bank. But government is the main role, main acting and regulating of the rule and law in the public sector bank.
This public sector bank is also divided into three parts, but I jump on private sector bank. हम private sector bank के पास में आ जाएंगे, यानी कि जो बैंक निजी बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, निजी तौर पे खोला हुआ बैंक है। निजी बैंक वह बैंक होता है जो सारे कार्य क्रियाकलाप तो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के और आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन पे करता है जितने भी, पर इसका जो मेन मोटिव जो होता है मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन होता तो है पब्लिक सेक्टर बैंक का भी मैक्सिमम प्रॉफिट का, लेकिन इसका जो सरकार का इस पर कंट्रोल होता है, इसका सरकार का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रूल रेगुलेशन को देखना होता है कि बैंक अच्छे तरीका से चल रहा है कि नहीं, क्रंच तो नहीं कर रहा है। ये सब सारी चीजों को हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखते हैं, बट इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। ऑलवेज हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, मिनिमम डिपॉजिट बैलेंस, सेविंग बैलेंस is required more than 5,000 and etc. But in the public sector bank, most of the bank provided minimum open of the deposit saving account or minimum requirement balances, credit extension of credit is very easy, etc. इस सब सारे बैंक मिलता है, बट यहाँ पर एक ये रहता है, इसमें एक मिलता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक दो एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे आईसीआई बैंक्स, ये बैंक हो गया। फिर एचडीएफसी बैंक, ये सब सारे जो बैंक है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक में हम इसे काउंट करेंगे। फिर हमारा क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जब यहाँ है तो फॉरेन बैंक भी, फॉरेन यानी कि विदेशी बैंक, जिसे हम विदेशी वित्तीय संस्था बोलते हैं, विदेशी बैंक भी हमारा यहाँ पे कार्य करता है, इंडिया में कार्य करता है। ये बैंक का भी यहाँ से लाइसेंस लेकर आरबीआई से और प्राप्त करके यहाँ पर सरकार को ये करता है, और वो इसी टाइप के बैंक की तरफ काम करता है। तो अलग अलग देशों से यहाँ पर आके बैंक अपना यहाँ खोलते हैं। इसमें से कुछ बैंक जैसे है कि फेडरल बैंक को देखा गया होगा, अमेरिकन बैंक, ये सब सारे इस तरह का बैंक है जो विदेशी बैंक है और इसे फॉरेन बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या है, जो जिसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक टाइप से होता है। ये सब रीजनल रूरल बैंक इज ग्रामीण बैंक। अब फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दैट मीन्स इज in respect of Bihar, regional rural bank, that means मध्य ग्रामीण बैंक, दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक, ये हमारा हो गया। फिर है साउथ दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक, या भी साउथ बिहार ग्रामीण बैंक भी इसको बोला जाता है। फिर है एक नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक। इस तरह का बैंक को हम लोग रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। दिस बैंक इज ऑलवेज फॉर द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प एंड असिस्टेंट टू एग्रीकल्चर सेक्टर को एक प्रोवाइड करता है लोन, और जैसे हो गया कि किसानों को उपज के लिए लोन देना, इनपुट के लिए क्रेडिट करना, ये सब सारे चीज को यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक के द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग से होता है, और यह जो रीजनल रूरल बैंक है मेनली जो नाबार्ड के गाइडलाइन पे ये चला करता है। ये सब ये हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं फिर पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर हम आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा क्या करता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक एक कैसे है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि इसे भी हम 3 पार्ट्स में बांटे हैं। इसको किस पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट में बांटते हैं SBI, दैट मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट्स। एसोसिएट्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके सहभागी बैंक,
एसबीआई मेन के साथ साथ में एक कुछ सहभागी बैंक भी होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं। इसके सहायक बैंक है पटियाला हो गया, सिंध हो गया, ये सब सारे बैंक क्या होता है कि इसके सहयोगी बोला जाते हैं। यहाँ पर एक क्या है, एसबीआई का भी जो है वो बहुत ही पुराना है और एसबीआई चेंज नेम है। सबसे पहले इसका जो इसे इंपेरियल बैंक के नाम से हम जानते थे, इंपेरियल बैंक के नाम से हम इसे जानते थे, और इस बैंक का इंपेरियल बैंक के नाम से हम इसे जानते थे, और इस बैंक का लगभग 1921 के आसपास में इसका इसे खोला गया था, नाम दिया गया था, और आगे चल तक भी बहुत दिनों तक रहा। तो इसका बहुत पुराना है और इसे बदल कर नाम इसे एसबीआई एंड एसोसिएट्स दिया गया। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वह है अदर बैंक्स, अदर नेशनलाइज्ड बैंक, दैट मीन्स आफ्टर एसबीआई, एसबीआई के अलावे, एसबीआई के अलावे क्या हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, ये सब सारे बैंक जो हैं अदर नेशनलाइज्ड बैंक में आता है। सेम फंक्शनिंग सेम होता है, सब कुछ सेम होते हैं, बस थोड़ा सा कुछ मामूली रूल में रेगुलेशन में कुछ, जैसे इसका कैपिटलाइजेशन एसबीआई का ज्यादा है, उसका कम है, ये सब सारे चीज को इसमें देखना पड़ता है। जो हम शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में हम उसका कैपिटलाइजेशन, इसका चेस्ट, ये सब सारे चीज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, अदर नेशनलाइज्ड बैंक, ये हमारा अदर नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। फिर अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, इसके अलावे भी कुछ बैंक हैं जो इसे हम अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में रखा गया है, पर बहुत ही इसका शेयर बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं 2019 और 20 में अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिंगिंग एक्ट टू reducing the number of national bank in India by process of merger, that means एक कुछ छोटे छोटे जो बैंक हैं उसे मर्ज करके हम एक बड़े बड़े बैंक में कुछ 4-5 या बैंक इस तरह से रहेंगे, उसे हम उसको मर्ज करके मिला के हम यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया अदर नेशनलाइज्ड बैंक का, वो तो बात की बात है, अलग है, लेकिन हमें इसको सिस्टम पहले समझ लेना है। फिर यहाँ पर हम आते हैं, ये हम कर लिए डिस्कस, यहाँ पर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को भी हम क्या करते हैं, 3 भाग में, कोऑपरेटिव बैंक डिवाइडेड इनटू, आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट मींस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। A state cooperative bank is a very big capitalization or own and functioning on the state level. That means ये state के लेवल पर फंक्शन करता है, और ये इसके जैसे, और मेन है कि cooperative bank. What is cooperative bank? Cooperative bank is different from commercial bank. In the means of this bank is mainly providing credit and less deposit in the bank. So this bank is owned and controlled by the a group of the system. This bank is grouping system, and mainly this bank is for the purpose of small scale industries, agriculture, SME, ये सब सारे तरह के बैंक को, एरिया को, फील्ड को ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। फिर इसी को ये क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक छोटे छोटे जगहों पर के लिए उससे अपना बांटता है कि ये तुम इस तरह का छोटे छोटे यूनिट में कर देने से, डिसेंट्रलाइज कर देने से इसका फंक्शनिंग अच्छा हो, जिसके कारण क्या करता है, इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांट देता है और इसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। लेकिन इसका जो फंक्शन जो है वो सेम है स्टेट कोऑपरेटिव तरह का, लेकिन वो थोड़ा सा इससे कैपिटलाइजेशन वगैरह में कम होता है, ऐसा होता है। उधर है अदर कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, कुछ अपने से कुछ ग्रुप ऑफ मिल करके यहाँ बैंक को रजिस्टर्ड करके इस तरह के हम काम करते हैं, यहाँ पे चलाते हैं। तो ये मेरा जो है जो कंप्लीट सिस्टम जो है आरबीआई शेड्यूल बैंक, आरबीआई और शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक डिवाइडेड आल्सो इन द 2, 3, 4 पार्ट्स। Public sector bank also divided in the 3 parts, cooperative banks also divided in the 3 parts। ये सब सारे जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल है बैंकिंग सिस्टम का इंडिया का, जो हम यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे रखे, और इसके बाद जो हमें इसमें सारे चीजों को देखने के लिए आता है वह हमारा क्या है, व्हाट इज शेड्यूल बैंक, व्हाट इज शेड्यूल बैंक,
व्हाट इज शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, ये सारे दोनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना होगा विस्तृत रूप से। फिर इसको इस देखिए कि क्यों इसे हम शेड्यूल बैंक के बोलते हैं, क्यों इसे नॉन शेड्यूल बैंक के रूप में बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसमें हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल के बैंक के बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस कर देना सही रहेगा। शेड्यूल बैंक इज दोज बैंक who listed in the list of second list of the RBI under the Act of 1949। इस तरह का होता है कि शेड्यूल बैंक यहाँ पे इसको RBI के सेकेंड लिस्ट में लिस्टेड होता है, बट नॉन शेड्यूल बैंक इज नॉट लिस्टेड अंडर द लिस्ट of second list of RBI and RBI. So this type of the fundamental differences between scheduled banks and non-scheduled banks, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि शेड्यूल बैंक्स क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या है। अब यहाँ पे हम ये भी देख लिए कि बैंकिंग आरबीआई कैसे यहाँ पे हुआ, इसका फाउंडेशन कब है, किस किस एक्ट के तहत आया, तो फाउंडेशन इसका 1935 है, 195 है। फिर इसे अंडर द एक्ट ऑफ 1934, बट इसे नेशनलाइज किया गया कब, नेशनलाइज किया गया 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया। ये सब सारे चीज को फिर हमें जानने का मौका मिला। एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक कहते हैं, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ये सब सारे चीजों को हम यहाँ पे एक समराइज करके एक होल स्ट्रक्चर में लेकर हम आए हैं, और यहाँ पर आई होप दिस लेक्चर इज वेरी बेनिफिशियल for the part third student in coming examination, and I also guess this topics is most important in coming examination. So thank you.